ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਡ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮਿਲੈ ਮੁਰਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਛੱਪਰ ਛਾਈ, ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸੇਜ ਨਿਕਸਾਈ, ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਕੁਝ ਭਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੱਡ ਬੀਤਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ 3-4 ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਘੁਮਾਣ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਂਡਾ ਨਾਥ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਨਰਸੀ ਨਾਮਦੇਵ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਔਂਡਾ ਨਾਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਘੁੰਮਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 12 ਸ਼ਿਵਲਿੰਗਮ ਨੇ ਜੀ। 12 ਸ਼ਿਵਲਿੰਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। 11 ਸ਼ਿਵਲਿੰਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਨੇ ਪਏ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਿਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਘੁੰਮ ਗਏ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੋਈ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਕੋ ਪਕੜਤੇ हैं, खुद को बदलते नहीं, कुरान को बदलते हैं। फिर सुनियो, एक नुक्ते को पकड़ते हैं, खुद को बदलते नहीं, कुरान को बदलते हैं। हुण मैं आप नूं बेनती करां, भगत एक दूजे नाल गल्लां शेयर करदे आ। अज वीर जी गल कर रहे सन कि भगत कबीर जी, भगत नामदेव जी, कबीर साहब की मिलनी का जिक्र है, भगत नामदेव जी पहला होए। भगत नामदेव का जिक्र भगत रविदास करनगे, भगत नामदेव जी का जिक्र गुरु अर्जुन देव करनगे, भगत नामदेव जी का जिक्र रोज धन गुरु रामदास करदे। तो ध्यान नाल सुनियो बेनती, जदों असीं आप सवेरे पाठ करदे हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਨਾਕਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ, ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿਓਰੇ ਨੂੰ, ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਖਰ ਸੇਤੀ, ਲੋਕ ਛੀਪਾ ਕਹਿ ਬੁਲਾਏ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿੱਠ ਦੇ ਛੋਡੇ, ਖਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਲਿਆ ਮੁਖ ਲਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ, ਉਹ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਭੇਦ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਹੀ ਭੇਦ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਇਹ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਮੋਕੋ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ ਰਾਮਈਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤਰਲਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਵੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਨਾ,
ਵੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਵੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰਾ ਕਿਤੇ ਵਿਸਾਰ ਨਾ ਦਈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁਲਾਈ ਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਮੋਕੋ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ ਰਾਮਈਆ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕੈਸੀ ਉਲਟੀ ਖੇਡ? ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ, ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਿੰਨਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲਾਇਓ ਨਾ। ਉਲਟੀ ਖੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਮੋਕੋ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ ਰਾਮਈਆ। ਆਲਾਵੰਤੀ, ਆਲਾਵੰਤੀ ਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਬੜੇ ਉੱਚੇ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਚੀ। आलावंती ए प्रमजोक है, मुझ ऊपर सब कोपिला, सूद सूद कर मार उठाओ, कहां करूं बाप बीठला। अगली गल मैं कहना क्यों नहीं वापरी? क्योंकि भारत की फिलोसफी कहती है कि बंदा मुक्ति का कंसैप्ट है, नरक का कंसैप्ट है, स्वर्ग का कंसैप्ट है, सारिया चीज़ां ने ना। वो कहते हैं कि मरण तो बाद तेरी भगती कर रहे हैं, मरण तो बाद मैनूं मुक्ति मिल गई, पर जिन्हां ने मैनूं धक्के मारे ने इन्हां ते मेरे नाल नहीं ना जाना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਮੰਗੂ ਤਾਨ ਮੰਗੂ ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਸੁਤ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਲੋਇਦੰਦ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਗਾ, ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, तेरे चरना थां मिल गई, पर जिन्हां ने मंदिर चों धक्के मारे ने इन्हां ते मेरे नाल मरना नहीं, जिहड़े लोकां ने मैनूं धक्के पैंदे देखिआ इन्हां ने मेरे नाल जाना नहीं। मुक्ति दा संबंध मेरी आत्मा ते तेरा संबंध है, अभेद तां मेरा तेरा संबंध है, ये दृष्टमान च है। जे वाहिगुरू तूं मरण तो बाद मुक्ति दित्ती ते कादी मुक्ति? जे कोई देना ही है तेरे भगत दी बेइज्जती होए, जिउंदी करामात वरता। देखो हुण तुसीं शब्द सुनिआ, ये पंडिया मोको ढेड़ कहत है। मेरी थोड़ी बेनती ध्यान ना सुनियो, मैं करने शब्दोसे की कथा, क्योंकि कथा लाइव चलनी है PTC ते, इस करके मैं थोड़ा जिहा बेस बना रहा। ये पंडिया मोको ढेड़ कहत है, ये बड़ी भैड़ी गाल है जी, डेढ़ का, ये मैनू गाल करदा पिया, नीच कहंदा। ये पंडिया मोको ढेड़ कहत है, तेरी पैज पछौंडी खोहला, पछौंडी दर ते पिछे पै गई, तुसीं फाडी रह गए। साडे पंजाब च कहंदे कहते ने मैनू ये छिंबा कह रहा, मैनू नीच कह रहा, कोई नहीं, मेरा बाप भी सी, मेरे दादे सन, सानू तो उच्ची जात वाले कहंदे नीवा ने, पर जे एक नीवी जात वाले ने तेरी बंदगी की ते लोग कहणगे रब सिर्फ वड्डियां दा है। सवाद तां है जे नीवा बंदगी करे ते ओदी मदद करे, तेरी घट्टो घट पैज नहीं जाएगी, तेरी पैज नहीं पिछे के पैगी, तेरी जय जयकार होवेगी। मैं कहना वेखो रब नाल किहो जिहियां गल्लां, तेरी पैज पछौंडी कोयला, मुँहे कोई जो मुक्त देहोगे मुक्त ना जाने कोयला। अगे कहने फेर दिया देवरा नामे को पंडियन को पिछवार ला। वो दूजा इसे शब्द नूं सौखियां कर दिता। इस मराठी शब्द सन जिहड़ा तुसीं पढ़िया, जिहड़ा साडे नॉर्थ विच असीं जे सौखा पढ़ीए वो है हस्त खिल तेरे द्योरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया, खिनड़ी जात मेरी जाद मराया। वेखो रिपीट कर रहा कि मैनू माड़ा क्या, ਇਹਦਾ मतलब मेरी फिर बेनती सिखो सुनो, ਆਪਾਂ इस चीज़ ਨੂੰ ਪਚਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲੋਗੇ ਮਨ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹਸਤ ਖਿਲਤ ਤੇਰੇ ਦਿਉਰੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਦਿਉਰੇ ਚ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਕਮਲੀ ਚਲਿਓ ਪਲਟਾਏ, ਦਿਉਰੇ ਪਾਛੇ ਬੈਠਾ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਚੰਗੇ ਹੋਏ, ਔਂਡਾ ਨਾ ਤੁਤਰੋ, ਉਹ 5-5 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਖਾਤਰ ਛਨਾਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ कि बाबा जी शब्द सुनाए, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै, भगत जना को दियोरा फिरै।
मेरिया अखां भारियां, मैं साडे नाल ते तुसीं चंगे हो। उस मंदिर च खलो के कह रहे हो कि मंदिर घुम्या, असीं ड्राइंग रूम च कथा तैयार करके कहना मंदिर कोई नहीं घुम्या होना, क्योंकि असीं साइंस की किताब पढ़ी हुई है ना। मैं फिर अर्ज करांगा एक होर शब्द, दो तीन मैं कहने ने याद नहीं। एक उन्हां दा शब्द हुंदा है, जो गुर दिओ तां सेज निकसाई। ये बड़ा घट सुनिया होना तुसीं। भगत नामदेव जी किसी दे घर गए, मैं ब्लाइंड फेथ रखना सीधी गल, मैं कदी अपनी अकल वरत के अर्थ नहीं करने। जो गुरु कहंदा वो सत है। उन्होंने किसी शाहूकार ने बड़ा कीमती पलंग भेटा किया। सेज का अर्थ पलंग कहांगे है ना। उन्होंने कहा मैनूं जरूरत नहीं हैगी। उन्हें फिर कहा जी नहीं नहीं, ये असीं अपने वालों भेटा देन लगे, तुहाडा अदब कर लई। वो चुका के नौकरां ने चुका के दे दिता। भगत नामदेव जी रस्ते दरिया वगदा सी, उह सड़ दिता। वो नौकरां नूं वो जिहड़ा ऐसे कह लगे उहदे वालों आ गया, पानी सड़ दे उहनूं। वो जो वापस गए तो शाहूकार नूं थोड़ा जिहा तां ही सी ना भी जदों भगत जी घर गए, उन्हां दे परिवार जां उन्हां दे जी खुश होए होणगे पलंग देख के। नौकरां नूं पुछदा किस तरह रह, किस तरह भगत जी दा घर? वो कहण लगे असीं ते अध विचाले आ गए, घर ते गई नहीं। वो कहंदा तुसीं घर नहीं गए, सेज कित्थे रख के आए? घर नहीं सेज लै गए भगत जी। कहण लगे वो राज दा दरिया है, नदी च उफान सी, कहण लगे दरिया दी भेटा कर दिओ, सड़ दिता। बड़ा दुख लगा भी मैं भेटा दित्ती, उन्हां पानी सड़ दित्ती। वो शाहूकार ने दूजे दिन नौकर भेज दिता, कहंदा जी भगत जी नूं कहो भी मेरे बच्चे ना उस पलंग ते सौंदे जो मैं साखी पढ़ी, जां ही कह लो मैनूं पलंग की लोड़ पै गई है, तुहानूं दोबारा दूजा दे देंगे ते तुसीं साडा वापस कर दिओ। तुहानूं पता ही पलंग ते रुड़ गया, पानी च डुब गया, बहा दिता बाड़ च। वो गए ते भगत जी कहंदे आ भी इस तरह करो, मालक सद लो। जिन्हें भेंट किया सी उहनूं भी लैंदा, दरिया के किनारे खलो गए। हुण ये गल गुरबाणी कह रही है, टीकाकार सारे अर्थ करते आ पर दबवीं जवाब च करते आ। उन्होंने नजर भर के देखा जी दरिया दे विचों कई पलंग बाहर दिसन लग पे। शाहूकार नूं कहंदे जिहड़ा तेरा अपना पछाण लै, वापस ले जा। पर उन्हें यह नहीं कहा मैं कढे, ये तो कह जो गुर दिओ तां सेज निकसाई, जो गुर दिओ तां छप्पर शाही। जे गुरु कृपा करे ते गरीब दी झौंपड़ी बन जाती, जो मेहर करे ते डुबियां हुई सेजा भी कढ़ दिंदा। इहदे अर्थ दूजे हो ही नहीं सकते। तीसरी एक घटना, मैं दो घटनावां का जिक्र कर चुका सारियां बाणी चों। एक असीं नामदेव की झौंपड़ी का जिक्र करने है जी। मैं क्योंकि कोई शब्द दो चार घटनावां मैं तुहाडे नाल साझीआं करनियां, दो कर दित्तियां, फिर मैं शब्द के अर्थ करने। कोई एक घटना है होर कि वह गवांढन जदों भगत जी का झौंप उत्थे सच्ची ये भी उन्हें यह नहीं कहा मेरा बंगला बन गया, उन्हें यह नहीं कहा मेरा विला बन गया जां बड़ा महल बन गया। उत्थे यही है जी भगत जी की झौंपड़ी बन गई। झौंपड़ी है, गवांढन आई, उन्हें आके पूछा भी आ केड़ा कारीगर सी भी साडे पिंड ते इहो जिहा है नहीं, जिन्हें तेरी इन्नी सोहनी छपरी बनाती, झौंपड़ी बनाती। साडी समस्या एवे असी सच्ची एवे परमात्मा नूं जुबानी कलामी मान्या, पर ओदी सर्व कला समर्थता जिहड़ी है ना ओदे ते क्वेश्चन मार्क ला दिंदे। उंज असीं सारे कहने आ कि डंडौत बंधन अनक बार सल्व कला समरथ, अनंत कला ले ठाकुर चढ़िया। पर साडी मुश्किल यह हुंदी है कई बारी उस चीज़ नूं असीं समझदे नहीं। मेरी फिर बेनती है कि सतगुरां ने ये बाणी च उस बीबी ने कहा जिहड़ी झौंपड़ी तुहाडी है ये किहड़े कारीगर ने बनाई, मिस्त्री कौन सी बढ़ई? उन्हें कहा तेनों की दसां? कहन लगी दसना कि मैनूं एड्रैस दिओ, पता दिओ, असीं भी अपना घर बनवाना है। एडी सोहनी बुनत कीती। कहन लगे उहदा एक एड्रैस होवे ते दसां। वो तो सारियां थावां ते वे। उहदे मन च आया भी शायद ये सोचदा पैसे। कहन लगे तेरे तो दूने पैसे देंगे, असीं रुपये वाले हाँ, जो तू दिता तेरे तो दुगने देंगे, एक बारी दस तां पा। हस के कहन लगे सच्ची तेन दसा उन्हें कदी नहीं तेरे लाउणा, ना तेनों पता दस सकना मैं। कहंदे क्यों? कहन लगे तू रुपइयां नाल दिहाड़ियां दे के रब खरीदना चाहनी है। वो गरीबां दा प्रेम वेख के आउंदा है, उहदे घर च प्रेम दी भेटा चलदी हुंदी है, मजदूरी चलदी है, पैसिਆਂ दी मजदूरी दी उहनूं परवाह कोई नहीं। ये शब्द है पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, का पहचान छवाई हो। फिर अर्ज है पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, का पहचान छवाई हो।
तो पै दुगनी मजूरी देखो मोको बेडी देखो बताई हो री बाई। देखो मेरा ख्याल शायद महाराष्ट्र शब्द वरते ने बाई, बाई का अर्थ भैन, री बाई री स्त्री लिंग है, ये मेरी भैने री बाई बेडी देन ना जाई देख बेडी रहो समाई खमारा बेडी प्राण आधारा। अगे उन्होंने एक बचन किया जो मैं सांझ करांगा, कह लगे बेदी प्रीत मजूरी मांगे जे को छान छवावे हो। हुण इत्थे फिर अर्ज बिल्कुल उन्होंने ये नहीं क्या मेरा महल बनया, सच्ची एवे कि परमात्मा की दिती दात। पिछले दिन मेरे मन च एक आया, मैं बरियाम सिंह कहते भी तुम लिख दो, सच्ची एवे लंघद्या कोई चीज दुनिया की ऐसी नहीं जिथे रब ने ज्ञान नहीं रखा, हर चीज च रखा। इथों निकल के दरवाजे तक जाओ, हर चीज कुछ ना कोई दसदी पई। असी की कर रहे हैं, पिछले दिन काउंटिंग की, प्रिंसीपल सतबीर सिंह शायद की, चलो भी जेड़ी टोडर मल ने मोहरां रखियां, उन्हां मोहरां की कीमत इन्ने करोड़ रुपये सी। पता नहीं मेरे मन च ना, मैं किसी ने दसिया राती मैं जदों लम्मा पिया, मेरे मन च आया भी आपां किते मोती राम नाल धक्का तो नहीं करदे पे, किते कुंभे माशकी नाल धक्का तो नहीं करदे पे, किते आपां लक्ष्मी बामणी जिन्हें लंगर छकाया। बस इक्को मेरे अंदर ने क्या सिखो, रब दियां दित्तियां होइयां दातां दीवान टोडर मालू ने, ओनू रब ने समर्था दित्ती, वो संस्कार की सेवा कर रहा है। मोती राम नू समर्था दित्ती, वो दुध पियान की सेवा कर रहा है। सच एवे लक्ष्मी बामणी नू समर्था दित्ती, वो रात नू रोटी ते गर्म कपड़ा दे रही है। कुम्मा माशकी अपनी झौंपड़ी च रख रहा है। जे सेवा का पद्धर देखो तो सेवा पखो टोडर मल ते मोती राम का दर्जा इको ही है। मेरी फिर अर्ज सुनियो, क्योंकि मोहरां ने सोने दियां, असी कहांगे, मैं भी कहांगा, पर जदों असी सोने दियां मोहरां, बड़ी वड्डी गल है जी, छोटी नहीं। इत्थे लोग धेला नहीं छड्डदे, उस बंदे ने सब कुछ लाता, पर सेवा विच जिन्ना हिस्सा पाई मोती राम का उन्ना ही दीवान टोडर मल दा, जिन्ना दीवान टोडर मल दा उन्ना ही हिस्सा सच एवे कुम्मे माशकी दा। हुण इत्थे उन्होंने क्या शन बना दी। हुण आपां रब नूं छोटी जी दात, मैं एक छोटी तुहानूं कहानी सुणाना। भाई साहब जी तुसीं शायद उदों कलगीधर कसा करते कीर्तन करते सन, भाई रजिंदर सिंह, उत्थे गुरुद्वारे साडे सब्जी मंडी जिथों भाई साहब ने शुरुआत की, उत्थे श्रीनगर तो आ की ना, उत्थे जी ज्ञानी दया सिंह जी दिलबर ना सुने, ढाडी सिंह सन अपने, मैनूं याद है उत्थे रात प्रोग्राम सी ते मैं जलंधर तो आया ते दिलबर साहब बोले, उन्होंने क्या देखो जी असी की करने आ, परमात्मा ने दिता हुंदा महल बंगला दिता जी, समझो भी 5-6 एकड़ च बंगला बनया, ते जदों खलोणगे ना, ये महाराज जी ने निक्की जी झौंपड़ी सानू दिती, ये झौंपड़ी सानू दिती है। वो कहंदा एडी बेईमानी ना करो लोको, जे रब ने महल दिता है ते महल ही कहो। कहंदे रब दा दिता महल, ये झौंपड़ी, ते अपना 1 रुपया कट के कहंदा ज्ञानी जी 1.25 लाख साडे वल्लों, तेरा 1.25 लाख हो गया, ते रब दा दिता महल एक झौंपड़ी बन गया। नहीं प्यारिओ, जे राज भाग दिता ते मनीए उन्हें दिता है। इत्थे भगत नामदेव जी का की संबंध महल नाल? उन्हां दा शुकराने नाल संबंध है। कहण लगे झौंपड़ी दे दी, महल दे दिता, मैं तो सिर्फ शुकराना। भगत जी ने क्या प्रेम की मजदूरी मंगदे। एक घटना सिर्फ मैं आप नाल होर सांझी करनी है जी, ये मैं कोई शब्द, हालांकि काफ़ी घटनावां ने, द्वारका नगरी काहे के मगोल, एक घटना मैं सांझी करनी है। उस महापुरुख की दृढ़ता, उस महापुरुख की अडोलता, उस भगत महापुरुख के अंदर की चढ़दी कला, वो तुहाडे सामने है कि भगत जी के सामने बादशाह ने गां है मरी। ये पूरा गुरु ग्रंथ साहिब अजकल के कुछ प्रचारकों ने ये अर्थ बदल दिते, मैं ना नहीं लेना, पर मैं जिक्र तां करना पिया क्योंकि पढ़ी लिखी श्रेणी अर्थ प्रवान कर लग पई। उथे गां मार दी, भगत जी बोलते ने राम, उन्होंने बादशाह ने कहा भी तू मेरे सामने अपनी जबान तो ना खुदा बोल, अल्लाह बोल। वो कहते ना, दूजी गल जे नहीं ते मरी हुई गां जिंदी कर। भगत जी कहते ने राजन बादशाह कदी मरे हुए कोई जिंदे होए आ? कह लगे फिर राम का असली बोल रहे हैं। कह लगे मेरा मरिया, मेरा क्या जिंदा नहीं होना,
पर जिहदा तू जिक्र कर रहा वो चाहे तो मिट्टी में जिंद पा सकता। उत्थे फिर भगत नामदेव जी के पैरों च बेड़ियां, हत्थां च हथ कड़ियां पा के, ये सारे गुरु ग्रंथ 27 अंग ने, पदे ने शब्द दे, उन्हें तशद्दद कर लगे, मारदे ने। उन्नी जेर नूं भगत जी की मां आ जाती है, वो बाणी विच जो शब्द है, वो कहती पुत्र तू समदृष्टि वाला है, तेरे मन च रंचक मात्र भी प्रभु दे नाम की कोई दवैश नहीं, तू एवें मार खा रहा है, तू राम छोड़ के खुदा बोल, सारा झंझट मुक जाए। ये जिन्ना तेरे ते तशद्दद हो रहा, एक लफ्ज़ ही बदलना है ना, तू राम मत बोल, खुदा बोल। उन्हां दी दृढ़ता देखो, कह लगे मां जन्म तू दिता है, दुध तेरा पीता है, तू मेरी मां नहीं, मैं तेरा पुत नहीं, मैं मरदे दम तक राम ही बोलांगा। उहदे तुहाडा ये शब्द है, सुल्तान पूछे सुन बेनामा, देखो राम तुम्हारे कामा। ये मैं विचों विचों तुका लैन लगा, पूरा शब्द बहुत लमेरा है। सुल्तान पूछे सुन बेनामा, बेनामा होए नामदेव, देखो राम तुम्हारे कामा, जिस राम को तू पुकारता है दस उसकी ताकत कितनी है। देखो राम तुम्हारे कामा, नामा सुल्तान है बादुला, देखूं तेरा हर बीठुला, क्योंकि भगत जी बीठल शब्द भी कहते सन ना, ते देखूं तेरा हर बीठला, बिस्मिल देव गौ देव जो आए, नातर गर्दन मारू ठाए, इस मरी गां नूं जिंदी करने ते तेरी गर्दन ला देंगा। अगों भगत जी कहने बादशाह ऐसी क्यों होए, ये कदी हो सकता है, बिस्मिल किया ना जीवै कोई, जेड़े मर चुके ने जिउंदे नहीं हुंदे। कह लगे फिर तेरा राम, अगे भगत जी कहने मेरा किया कछु ना होए, कर है राम होए है सोए, मैं नहीं जिंदा कर सकता, जे मेरे राम नूं चैलेंज करेगा वो मिट्टी विच भी जान पा सकता, वो कर सकता। हुण ध्यान रखियो इस गल नूं, उत्थे पूरा जिक्र है गां जिंदी होण दा, उत्थे दुध चोण दा जिक्र है। बिस्मिल किया ना जीवै कोई, कह लगे मेरा किया कछु ना होए, कर है राम होए सोए, अगली तो के रुदन करे नामे की माए। अर्थ सुनियो, नामदेव जी की मां आ गई रो रही, कह लगी पुत्र छोड़ राम की ना भजा खुदाए, छड़ दे राम मेरे बच्चिया, तू खुदा खुदा बोल। अगों भगत जी उत्तर देंदे ने, राम छोड़ राम की ना भजै खुदाए, ना हो तेरा पुंगड़ा ना तू मेरी माए, पिंड परै तो हर गुण गाए। पिंड परै मीन्स के मेरा शरीर सच्ची मुच्ची टुकड़े टुकड़े हो जाए, मेरे टुकड़ियां विचों भी राम की आवाज निकलेगी। पिंड परै तो हर गुण गाए। अगे कहते गंग जमन जो उल्टी बहे, तो नामा हर करता रहे। गंगा ते यमुना अपने प्रवाह नूं चेंज कर सकदियां ने, पर नाम दे मर जूगा बोलूगा राम की। अगली फिर होया की जी, पावों बैड़ी हाथों ताल, वो नामदेव जी नूं मार रहे ने। वो अकतारे ना गाउंदे सन ना भगत नामदेव, शायद तुहानूं पता होना, अज भी जिहड़ा उन्हां दा जन्म स्थान है, जो मैं पहला दर्शन काफ़ी समा पहला करके आया, उत्थे 8 पैर कीर्तन हुंदा जी। आप जी गए होगे उत्थे, एक आदमी पिंडां, कई पिंडां दी ड्यूटियां ने, एक आदमी एक तारा पकड़ के खलोता है, वो जाप कर रहा है। उन्हें कहा मेरा तुसीं साज तां खोह लिया, पर मेरे कोल साज दा साधन है। पैरां च पाइयां बेड़ियां, हत्थां च हथ कड़ियां दे, दोनों हथ मारे, संगल विचों आवाज आए, वो कहन राम छोड़, वो संगल दी धुनी नाल ही राम राम बोलन लग पे। पावों बेड़ी हाथों ताल, नामा नामा गावे गुण गोपाल, गंग जमन जो उल्टी बहे, तो नामा हर करता रहे। हुण अगली गल की हुई, मां नूं भी जवाब दे दिता, तो शद्दद भी हो रहा है, ते इक्को गल कही, मैं तां रब आसरे बैठा जी, तेरा ही सहारा है। हुण अगले शब्द ने, सात घड़ी जब बीती सुनी, अजू ना आयो तर भवन धनी, पाखंतन बाज बजाएला। अब बजाएला शब्द तुहाडे मराठी दा है। पाखंतन बाज बजाएला, गरुड़ चढ़े गोबिंद आएला। अज जदों आपां पाठ करांगे, आला ते निवारना, याद रखियो ये शब्द है आएला। आएला दा अर्थ तुसीं जानदे हो, आ गया। सात घड़ी जब बीती सुनी, अजू ना आयो तरभवन धुनी, तरभवन धनी, पाखंतन बाज बजाएला, गरुड़ चढ़े गोबिंद आएला। हुण वेखो आवाज की आई, राजा भी है, गरी मरी गां भी है, भगत जी ते तशद्दद भी हो रहा है। आवाज आई, कहें तो धरन अकोडी करूं। सुनियो,
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਕਾਂ ਲਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹੇ ਤਾਂ ਧਰਨ ਅਕੋਡੀ ਕਰੋ, ਅਕੋਡੀ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਟੇਢੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੇਢੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹੇ ਤਾਂ ਲੇਕਰ ਉੱਪਰ ਧਰੂ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਟੰਗ ਦਿਆਂ, ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੁਈ ਗਊ ਦਿਉ ਜਿਆਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੇ ਪਤੀ ਆਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਗਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧਰਤੀ ਐਵੇਂ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ, ਮਰੀ ਗਾ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣ। ਸੱਚੀ ਇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਫ ਥੋੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਪਰ ਡਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜੀਗਰ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਜੀਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਭੇਖ ਦਿਖਲਾਈ, ਸਵਾਂਗ ਉਤਾਰ ਥਮਿਓ ਪਸਾਰਾ, ਤਬ ਏਕੈ ਏਕੰਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀਗਰ ਡੰਕ ਵਜਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਬਾਜੀਗਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਮਰੂ ਵੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜੀਗਰ ਡੰਕ ਵਜਾਈ, ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ, ये तो पुराण से कहानी आई, ये पुराणिक है, पर जिहदी हाडे नाल बीती वो कह रहा है। अज जिहड़ा शब्द तुसीं हुण सुनिया है, इहनूं थोड़ा ध्यान नाल इहदे अर्थ पहलां आपां करिए। शब्द है पहल पुरिये पुंडरिक वना। पहल का अर्थ हो गया अव्वल, अव्वल मीनस पहला पहल। ये पुरिये का अर्थ जी दूजा पुरिया नहीं करना, इहदा अर्थ जिवें पंजाबी च बोलना पहला पहला। पहल पुरिये पुंडरीक वना। पुंडरीक का अर्थ है कमल का फुल, चिट्टा कमल का फुल। इनू गुरमुखो मेरी बेनती सुनियो, तुहाडे कोल फोन ने, तुसी शब्द कढ भी सकते हो, अर्थ अर्थ सौखे समझने हो जाएंगे। पहला पहल कमल का चिट्टा फुल सी। उंज जिहड़े तुसी अर्थ पढ़ोगे उहदे विच जिहड़े अर्थ टीका करने उन्हां अर्थ ये लिखे होने ने, पहला पहल परमात्मा ने कमल के चिट्टा चिट्टे फुलों का खेत बनाया। खेत सी, मैं तां कहा भी तुसीं अर्थ ना सुनियो, वो देखियो, सिर्फ शब्द देखो। पहल पुरिये, इहदा अर्थ हो गया पहले पहल। पुंडरिक बना, चिट्टा कौल फुल सी। ता चे चे, ता चे उस विचों, ता चे खंसा। इत्थे अर्थ गुरमुखा किते ने, खंसा का अर्थ है जीव रूपी खंस। तांचे खंसा सगले जना, सारे जंत जिहड़े ने, जना का अर्थ है जंत। पहला पहल कमल का फुल सन। ये जिन्ने जीव ने, ये सारे दे सारे जिहड़े ने, ये दरअसल ये उस खेत दे खंस ने। पर मैं अर्थ कीते ने, मैं अर्थ ये नहीं मनागा। वेखो ये दो गल्लां ने, सृष्टि की रचना पुराण की कह रहा है ते वेदांत की कह रहा है। चार तुकां च भाई साहब जी भगत नामदेव ने पूरे पुराण ते वेदांत दी सिद्धांत का जिक्र कर दिता। क्यों हुण इहदे अर्थ इउं जे कीता जी, पहला पहला चिट्टे कमल फुल सन, खेत सी, सारे जीव हंस ने। मेरे मन च एक दिन आया जी, अर्थ करदिआं भी कमल दे फुल दा संबंध पानी नाल तां हो सकदा है, कमल दे फुल का संबंध भवरे नाल तां हो सकता है, पर मैं नहीं किते गुरु ग्रंथ साहिब विच किसी विद्वान नूं इह पढ़िया होवे कि कमल दे फुल का संबंध हंस नाल है। हंस का संबंध कमल नाल है। गुरबाणी च हंस ते सरोवर का है, सरवर हंस तुरेगी मेला खसमै एवे भाणा है, पर हंस का संबंध कमल नाल किवें? नहीं प्यारिओ, असी इस गल नूं फिर सुनियो। मैं दो गल्लां, ये पुराणिक घटना है। पुराण कहता है कि सब तो पहला कमल का फुल होया, विष्णु जी की नाभि दे विचों कमल का फुल निकलिया। मैं पुराण की गल कर रहा। उस कमल के फुल दे विचों ब्रह्मा जी की पैदाइश हुई, ते ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि सर दी। ये पुराण बोल रहा है। ये हुण फिर अर्ज है, मैं फिर कहांगा कि शब्द थोड़ा जिहा महंगा, तुसीं ध्यान दोगे बिल्कुल समझ पाएगी। सतगुरु भगत जी की कह रहे हैं,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਿਕ ਬਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲ ਚਿੱਟਾ ਖੋਲ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਚੇ ਹੰਸਾ, ਹੰਸਾ ਆਇਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਸਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਿਆਣੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੰਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੇ ਹੰਸਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਬਾਜ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵੱਲ ਲੋਕੀ ਬਾਜ ਪਾਲਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਟਾ ਬਾਜ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਬਾਜ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੁਣਿਓ, ਹੰਸਾ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੇ ਹੰਸਾ, ਕੌਣ ਹੰਸਾ? ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਅਰਥ। ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਿਕ ਬਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਨਾਭ ਕਮਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਪਜੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਿਕ ਬਨਾ, ਤਾਂ ਚੇ ਉਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਸਾ, ਹੰਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਚੇ ਹੰਸਾ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਸਗਲੇ ਜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਹੀ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ जिसने संसार पैदा किया वो ब्रह्मा है। फिर अर्थ सुनागा, गुरमत का नजरिया कुछ होर है। तांचे खंसा, ओदे विचों ब्रह्मा पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने की किया? सगले जना, उन्होंने सारे जीव जंत पैदा कर दिते। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਸੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਿਕ ਵਰਨਾ, ਤਾਚੇ ਖੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨਾ, ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਜਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਚੰਤੀ ਨਾਚਨਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ प्रोफैसर साहिब सिंह उन्होंने कृष्णा का अर्थ माया किया, क्योंकि कृष्ण का लफ्जी अर्थ ही काला हुंदा है, तां कृष्ण कहने। काजी कृष्णा हुआ, गुरु ग्रंथ साहिब जी की तुक हुंदी, काली काजी काला हो गया। कृष्णा ਇਹਦਾ अर्थ है जिहड़ा खिच पांदा, खिच पांदा वाला परमात्मा। कृष्णा ते जानो, हे भाई जिहड़ा परमात्मा प्रेरक है, हरि प्रेरक है, इऊं जानो। कृष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना। जिन्ने जी परमात्मा ने पैदा किए ने, बस उन्हें एको जी खिच पा दी सारियां विच। हर बंदा अपनी अपनी थां ते नच्ची जांदा ते नचाण वाला वो है। मेरी बेनती शायद अर्थ समझ पै गया होणगे। मेरा मकसद सिर्फ अर्थ करने का है, तो मैं इस करके कर रहा क्योंकि इस कथा नूं करोड़ां संगतां ने सुनना है। मैं फिर रिपीट कर रहा, पहल पुरीए पुंडरिक बना, पहले पहल कमल का फुल सी, पर पुराण कह रहा है, अगे गुरमत अपने हवाले देगी। पहल पुरीए पुंडरिक वना, ता चे हंसा, उस विचों ब्रह्मा जी पैदा हुए। सगले जना, उहदे विचों सारे जीव जंत पैदा हो गए। तांचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानो हर हर नाचंती नाचना। आ परमात्मा खेड रचा दी। इस माया कह लो जी खेड सारे नच्ची जा रहे हैं। हुण अगे पहला पदा समाप्त हो गया जी मेरा ख्याल। अगे है पहल पुरुषा बिरा, इसलिए अगली तुक ना पहल पुरुषा, यह विदांत आ गया। विदांत कहता भी पहला पुरख सी, पुरख ने प्रकृति पैदा की। प्रकृति ते पुरख जदों आपस च मिले तो संसार बनया। इनू सौखा मैं कर देना जी, ये तुसीं रोज पढ़दे हो जिहड़ी मैं कथा कर रहा हूं। इस शब्द के इन्हां तुकां दे जे अर्थ वेखने ने तां गुरु नानक साहिब दी आसा की वार दी पहली पौड़ी पढ़ो। पहल पुरुषा बिरा, पहला पहल पार ब्रह्म परमेश्वर, इहदा अर्थ पहला पहल परमात्मा ही प्रगट होए, ओही ने। अथोन, अथोन दा अर्थ फिर दोबारा। पुरुषा दमरा,
ਇਹਦਾ अर्थ हो गया पुरुष और प्रकृति। पुरुषा दमरा दा अर्थ है माया। मैं सौखे अर्थ कर रहा हूं। पहल पुरुषा बिरा, पहले प्रभु आप ने अथोन पुरुषा दमरा, उस प्रभु ने ओनू किसे नहीं बनाया, उन्हें अपने आप माया बना दी। अथोन पुरुषा दमरा होया कि असगा अस उसगा। फिर सुनियो, ऐस प्रकृति दा ते उस पुरुष दा। पहल पुरुषा बिरा, अथोन पुरुषा दमरा, असगा अस। अस दर्थ है, एक अस दर्थ ना घोड़ा, इत्थे है असगा अस उसगा। प्रकृति दा ते प्रभु दा, माया दा ते परमेश्वर दा मिलाप होया। कहने लगे विधांत ये कह रहे हैं असगा अस उसगा की बन गया हर का बागरा, नाचे पिंदी में सागरा। हर का बागरा, बाग, बागरा दर्थ है बाग। ये सृष्टि परमात्मा ने बाग बना दी। नाचा पिंदी में सागरा, नाचा दर्थ है नच रहा है। पिंदी का लफ्जी अर्थ होंगे खूह दियां टिंडां। टिंडां वाला खूह तुसीं देखिया होना है, पानी भर के आउंदा हुंदा सी जी। अजकल इत्थे ते है नहीं, पर लैंदे पंजाब विच बहुत मिलते हैं, पाकिस्तान च बहुत अजे है जी टिंडां वाले खूह। कहने परमात्मा ने खरका बागरा, नाचा पिंदी में सागरा। पिंदी का अर्थ है टिंड ते सागर का अर्थ है पानी। जिमें टिंडां घूमदियां ने ना जी, उन्हां च पानी छलकदा है, नचदा है। कहने लगे वाह परमात्मा, तेरे ते माया नाल रच के जिहड़ी तू खेड़ बना दी, इत्थे सारे जीव माया च अंज नची जांदे आ जिवें खूह दीयां टिंडां विच पानी नचदा पिया, सब नची जा रहे हैं। फिर सुनियो अगे तुक ध्यान नाल, मैं रिपीट कर लगा। पहल पुरुषा बिरा, पहला परमेश्वर ने। अथोन पुरुषा दमरा, दोबारा प्रकृति माया पैदा हुई। असगा अस उसगा, हर का बागरा, नाचा पिंदी में सागरा। सोहना बाग बना दिता, जिवें खूह दीयां टिंडां च पानी नचदा है, जीव नच रहे। हुण थोड़ा जिहा इहनूं देखियो, मेरा ख्याल सौखा होर समझ पै जाएगा। थोड़े जे दिन मुश्किल आउंदी है जदों बाणी नूं बाणी नाल खोलीए ना। मैं कल तुहानूं कहा सी, जिस बंदे ने कदी सहज पाठ नहीं कीता उहदे लई बड़ी मुश्किल आउणी। उहदे लई सौखा तरीका होवे, गुरुद्वारियां विच प्रोजैक्टर लगा होवे ते शब्द उत्ते आवे ते संगत बैठी सुने। ते मेरा ख्याल जे 5-7 दिन की कथा च अर्थ ही कले समझन लग पए ना, बड़ा कुछ प्राप्त कर जाण। हुण मैं फिर रिपीट कर लगा, पहला परमात्मा सी, ये नहीं क्या परमात्मा नूं बनाया। फिर माया बनी, माया तो संसार बन गया, संसार सारा खेड रहा है। इहनूं हुण सौखा समझो, आपी ने आप साजियो। पहल पुरुषा बिरा, आपी ने आप साजियो। हुण इत्थे मैं शब्द वरतिया अथोन। अथोन दा अर्थ दूजा, दोबारा। आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो, नाउ दुई कुदरत साजी है। अथोन पुरुषा दमरा, दुई कुदरत साजी है। कर आसन डिठो चाओ। वाहिगुरू जी सारियां नूं परमात्मा ने पहला अपने आप सी। फिर सुनो, सौखा अर्थ मैं करांगा। आपी ने आप साजियो, ਇਹਦਾ मतलब कि उन्हें सिरजना की उस तो पहला नहीं सी। साजियो का मतलब है वह सुन सी, अफुर सी। जेड़ा अफुर सी ना जी, उन्हें अपने आप को सफुर कर लिया। जेड़ा नहीं सी दिसदा, उन्हें अपने आप को प्रगट कर लिया। इन्हें सौखा समझ लीए। होर जी, इस हवा दे विच पानी है। आपां बाहर जाने, हवा च नमी है ना जी, पर साडे कपड़े भेज रहे है जरूर पानी, पर जिदन बदल बन के वरसिया उस पानी ने प्रगट हो जाना है। वो अपने आप पहला सी, पर उन्हें जदों साकार किया, उन्हें अपने आप की साकार सिरजना की। आपी ने आप साजियो, अपनी आपी ने रचियो, नाउ अपने विचों नाम शक्ति पैदा की। उस नाम विचों दुई कुदरत, जिन्हों माया कह रहे हैं, अथोन पुरुषा दमरा, दुई कुदरत साजिया। कर आसन डिठो चाहो, सब कुछ बना के उहदे च आसन ला लिया। फिर बेनती है, पहल पुरुषा बिरा, अथोन पुरुषा दमरा, असगा अस उसगा, हर का बागरा, नाचे पिंदी में सागरा। हुण अगली तुक, नाचंती गोपी जन्ना, टिप्पी लगी उत्ते जी। नाचंती नचदे पे ने, कौन जी? गोपियां। गोपी केड़ियां गोपियां? जिवें कृष्ण जी सन ते गोपियां जेड़ियां सन वो रास लीला करदियां नचदियां सन। नाचंती गोपी जन्ना, जन्ना दा अर्थ है जीव। ਇਹਦਾ अर्थ है जिन्ने जीव ने, जिवें
कृष्ण जी के सामने गोपियां नचदियां सन। भाई सिखो, परमात्मा ने रचना इहो जी कीती, सारे जीव जेड़े ने पार ब्रह्म परमेश्वर वैगुरु ओदी रचना विच इस तरह नच रहे ने जिवें गोपियां नाच करदियां सन। ये जीव ना जन्ना दा अर्थ ना जीव, नचंती गोपी जन्ना। हुण अगली तो के नैया, नैया ते बैरे, बैरे। फिर सुनियो, एक नैया दा अर्थ हुंदा बेड़ी, एक नैया दा अर्थ हुंदा नायक, आगू। बैरे मीनस बहरे नहीं, बहरा अर्थ करांगे ते बोला। बैरे दा अर्थ है वखरे, नैया ते बैरे कन्ना, कन्ना दा अर्थ है कोई भी। नचंती गोपी जन्ना, नैया ते बैरे कन्ना, कोई जीव नचदा पिया, ये गोपियां बन के नचदे ने। वैगुरु जी ये नचन वाले तेरे तो वख थोड़ा ने। फिर सुनियो, इनू सौखा समझ लियो। मैं तुहानूं कहा सी शब्द थोड़ा जिहा महंगा है, ध्यान दिओगे तो बार बार फिर समझ पाओगी। नैया ते बैरे कन्ना, पर नायक तो वैगुरु तो बिना कोई नहीं। सौखा है, कहूं गीत के गवैया, कहूं बेन के बजैया, कहूं नृत्य के नचैया, कहूं नर को आकार हो, कहूं वेदबानी, कहूं को की कहानी, कहूं राजा, कहूं रानी, कहूं नार को प्रकार हो। देखो, कहूं बेन के बजैया, कहूं धेन के चरैया, कहूं लाखन लवैया, कहूं सुंदर कुमार हो। ऐदे अर्थ ए जे, नचंती गोपी जन्ना, नैया ते बैरे कन्ना, कहूं गीत के गवैया। कदे तू सोहना सोहना गला लैके बैठा, लखां लोग सुनते ने, जदों सुर च गाउंदा है, मेरे वैगुरु तू गीत गाने वालियां विच गाना पिया। कहूं बेन के बजैया, कदे तू बंसरी बजाना पिया। कहूं नृत्य के नचैया, किते तू सोहने सोहने नृत्य करना पिया। नैया ते बैरे कन्ना, गाउण वाले बजाउण वाले नचन वाले कोई भी तेरे तो वख नहीं, सारे में तू ही है। फिर ध्यान नाल सुनियो, कहूं गीत के गवैया, कहूं बेन के बजैया, कहूं नृत्य के नचैया, कहूं नर को आकार हो। ये बंदियां दे शक, किते तू राजा बन गया, किते गवैया बन गया। अगे कहूं वेदबानी, किते तू ज्ञान दी बाणी बनया है। कहूं कोक की कहानी, किते तू कामुकता दियां साखियां बनया, कहानियां बनया है। कहूं वेदबानी, कहूं कोक की कहानी, कहूं नार को प्रकार हो। स्त्रियां दे कई रूपां भी तू है। फिर अर्थ सुनियो, कहूं नार को प्रकार हो, कहूं बेन के बजैया, किते तू बंसरी बजा रहे हैं। कहूं धेन के चरैया, किते मज्जां गावां गौवां चा रहे हैं। कहूं लाखन लवैया, कईयां लाखन दा अर्थ कीता मक्खन, लाखन दा अर्थ लक्षण लवाना। किते गावां चा रहे हैं, किते बंसरी बजा रहे हैं, किते अपने उत्ते बैठा तोमता लवाई जा रहे हैं, किते बुरा बनया बैठा, किते चंगा बनया बैठा, पर नैया ते बैरे करना तेरे तो वाह कोई नहीं। इनू होर थोड़ा जिहा गुरमुख सौखा समझ लो। समझ का मतलब ये नहीं कि तुहानू नहीं पता, मैं अपने मन नू कह रहा। असंख जप असंख भाओ, हाँ जी। दूजी असंख मूर्ख अंधघोर, दो पौड़ियां कट्ठियां ना। पर किते तुसी देखो मूर्ख अंधकार दी पौड़ी च कह, रब जी ये बंदे तेरे तो बागी हो गए, मार दे मार। कहते ना, माड़ियां विच भी तू ही खेड रहे हैं, तेरे तो वखरा कोई नहीं। जो नानक नीच कहे विचार वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली कार। ना चंती गोपी जन्ना, ते ये तेरी कारख है। गुरु जी कहते कहूं वेद की बानी, कहूं को की कहानी, कहूं नार को प्रकार हो। अगे कहते कहूं बेन के बजैया, कहूं धेन के चरैया, कहूं लाखन लवैया। अपने ते तुमता लवाई बैठा, किते अपमान तो हो रहे हैं। देखो कैसे कमाल, लाखन लवाइया। कहूं सुंदर कुमार हो, शुद्धता किसान हो, संतर के प्राण हो, के दाता महादान हो, के निर्दोखी निरंकार हो। क्योंकि तू रचना करी बैठा है ना, ये रचना च चंगे मंदे सारे ने, पर तेरे उत्ते दाग कोई नहीं लगना। मेरी फिर बेनती सुनियो ध्यान नाल जी। नचंती गोपी जन्ना, नैया ते बैरे करना। कोई परमात्मा चंगे मंदे ओदे ने जी। तुसी मैं दसो केड़ा जिहड़ा मंदा है ओदे हुक्म तो बाहर है। भगत नामदेव रचना की गल कर रहे आ। कहने देखो भाई, नैया ते बैरे करना, उस नायक तो वखरा कोई नहीं। अगे है तर्क ना चा, नाचा कट्ठा बाठ नहीं। तर्क ना चा, ओदी रचना ते तर्क ना करी।
जो उन्हें बना दिता अंज ना करी अंज साडे बंदे करते जे परमात्मा अंज ना करदा। मैं तो निक्की जी गल सुनाना। आ तरबूज तुसीं तरबूज कहंदे हो ना, वाटरमेलन हदवाना, वैसे तो साडे पुराने बजुर्ग हदवाना ही कहंदे हुंदे सन। एक बंदा ना, मेरी गल सौखी समझ पै जाएगी, मैं कहानी जान बुझ के लई है क्योंकि मैनूं पता लग जाता फेस तो जो डूंगी गल करने तो उकता जाती संगत। एक बंदा सी सुत्ता बोर्ड के रुख थले, रेतली जमीन सी, उन्होंने नींद आई तो देखा बोर्ड के निक्के निक्के फल हुंदे आ, निक्के निक्के मले दे बेर नहीं वेखे, इं कह लो अजकल तुहानूं की कहां ब्लूबेरी, हाँ इन्ने कुं हुंदे निक्के निक्के। ते जिथे सुत्ता सी ते निक्की जी बेल वल ओहदे नाल लगा 10 किलो हदवाना। ते लम्मा पिया पिया कहंदा कहंदा परमात्मा तू किहड़ी किसे दी सलाह लई सी, एडा वड्डा दरख्त जिन्हें हज़ारां साल जीना है, ये पत्ते एडे वड्डे, निक्का जिहा फल आया, निक्का जिहा फल, बोर्ड का निक्का जिहा फल, आ निक्की जी वेल है जिन्हें रहना भी कोई दिन है। ते इन्ने ने तू 10-10-15 पहला किलो दे तरबूज ला दिते। जे ये काम उल्टा कर ली तो तरबूज उत्ते ला देंदा ते जेडे निक्के निक्के फल लगे ने वेलां ला देंदा। ये गल करके सौ गया तर्क करके। जदों सुता ना रब दी खेड़ इस तरह सीधा पिया सी ते उत्तों ना 25 फुट उच्चा टाणी दे नाल ओदा फल डिग्गा निक्का जिहा ते नक दी करुंबली ते वज्जा, सुते दे ठा करके जो वज्जा, अखां चों पानी आ गया, मल के कहंदा नहीं नहीं तू चंगा ही करना, जे अदवाना वजदा मेरा की बनना सी। बच्चे ते रखियो जो रब करदा ना तर्क ना चा, तर्क नहीं करना। मैं तां थोड़ा तुहाडा माइंड चेंज किया, मैं गल अपनी शब्द दी करके जानी। काहदा तर्क करना, जे इस तरह मैं करदा इस तरह करदा अंज ना, नहीं प्यारिओ वो जो कुछ करदा आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी, जो तिस भावै नानका साई गल चंगी। जो कुछ ओनू चंगा लगदा बस वही ठीक। दो तरीके ने जी, एक संघर्ष दा, एक समर्पण दा। जिंदगी संघर्ष करिए, रब सामने संघर्ष नहीं करीदा, समर्पण करीदा। जिस ठाकुर सो ना ही चारा ताको कीजै सद नमस्कारा।